फाउंडर्स की स्टोरी बताई जाती है या फिर एक स्टार्टअप की स्टोरी बताई जाती है, नोबडी नोज अबाउट ए मिडिल लेवल एम्प्लॉय और ए फ्रंट लेवल एम्प्लॉय कि उसने क्या किया। खतौली में जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे किसी का लड़का आज से 10 साल पहले 20,000 भी कमाता था तो एक एक शोशा हो जाता था कि, और ये था कि मंथली रिटर्न आने चाहिए, क्योंकि मेरे को मंथली बनाना है। मेरे को ये नहीं है कि मैं 6 महीने तक बैठा रहूँ। आई बैट ऑन द जॉकी नॉट ऑन द हॉर्स। Hi everyone, welcome to the Inquisitive Investors, a podcast for the investors by the investors. And today I'm really excited about our guest, whose name is Mr. Shrey Joshi. He has done a lot of work in sales, operations, growth at different companies like Amazon, Sony, Wheelsai, FleetX, and now he has started his own company named Corporate Soldiers. And please join me to welcome Mr. Shrey. Hi Shrey. Thank you, Ashish, for the introduction. I really struggled with your introduction honestly, because I was thinking, can I say okay, let me just give it a one more try. Let us welcome Mr. Shrey, who is a landlord, entrepreneur, passive income generator and whatnot. Again, welcoming Shrey. Thank you again. I am personally very excited to chat with you today, knowing that you have been a part of Grip from the very beginning. You were an angel investor in Grip, and then continued to invest on the platform. Always believed in the products that we are bringing, and your voice matters a lot to us. And I think your journey will really help all our viewers today to even make their portfolio or investment strategy better. And we always say this at the beginning or in the middle of the podcast, that anything we are going to discuss are not investment advice. Please use caution before you apply any strategy or any advice from this podcast. So that's it from my side, Shrey. Maybe you can do a quick introduction about yourself. Yes, thanks Ashish, and really excited to have a nice discussion with Ashish. It will be a good learning from Ashish also, as they are the benchmarkers for Indian industry. As we all know that Grip is recently got SEBI approved. Yeah. So I am not sure whether any other startups got this kind of verification from such a high financial institution. So yeah, I was really interested in knowing your journey. Okay. I think you belong to a tier 4 city, Yes. right? And if you were able to study, find job, and make good investment decisions, right? I was reading notes from the team. It mentioned that you were very wise to like buy a house and put it on rent within like 3 years of your career. Yes. So that was really interesting to me. Maybe let's start from there and try to understand, when you started your job, right? What were the thoughts then about the investment? What did you think of investment back then, and how did it turn? Okay, so I started my career with HCL Infosystems as a management trainee. I got promoted there as a area manager. Then I moved to Sony India, and where I was handling the entire PlayStation vertical for UP East, UP West, and Uttaranchal. The investment idea at that time, I was loan free. There was no issue, but as I always believe, a penny saved is penny earned. That is my, I believed on this quote. Being from tier 4 city, I used to travel to Sony. It was in Ghaziabad. My hometown was in Khatauli. So it took me 2.5 hours to, and fro is also 2.5 hours. So it's 5 days a week. My office was when I was in Sony. So there was no as such financial issues on me. No education loan that time. So I got a good amount of money, 8-10 lakhs. So I think I should purchase a car. However, my organization provides me car even if I am traveling to 40 kilometers. Then my paternal uncle told me, don't buy an elephant. Don't buy an elephant. It's an elephant you are buying. हिंदी में बताओ ना, what is the saying? तो कह रहे हाथी मत पाल, तेरे को खिलाना ही पड़ेगा, उसको कोई फायदा नहीं है. बिल्कुल. If you wanted to do something really wise, and I really admire him a lot. मेरे मौसा जी हैं वो, तो he recently got retired from NPCL.
तो उनकी भी जर्नी आई रियली एडमायर हिम इन इन्वेस्टमेंट थिंग्स. तो उन्होंने बोला कि यू शुड बाय प्रॉपर्टी विच विल गिव यू ए यू नो लाइफ टाइम अप्रिसिएशन एंड यू विल हैव ए फुटप्रिंट इन नोएडा. अभी तक आपके परिवार की जितनी भी प्रॉपर्टी है इट्स इन खतौली, but when you will have a footprint in NCR. And where is Khatoli? Khatoli is 2 hour, right now 1 hour drive from Haridwar. Got And 1.5 hour drive from Delhi. Back there in 2012 it was almost double and triple amount of time it used to take, thanks to Mr. Gadkari for his amazing change in the Indian logistic industry and entire infrastructure. Please tag Mr. Gadkari. So yes, then I purchased a flat, and it was my first investment, big investment, and I took a loan of 21 lakhs at that moment, at that time, from India Bulls. That rate was 12%, floating interest rate was 12%. It was quite high, and no one is giving loan apart from India Bulls on JP flats at that time. And on the very first investment, after doing the entire paperwork, everything, within 1 year there was an issue with the organization from which I purchased the flat. It's a very known name, but luckily I got my flat, and what I did, I made it semi furnished and I rented it out to Nestaway. It's a startup. Okay. And what they did, they monetized it in a better productive way. They rent it out on the basis of the beds. So there were 4 tenants at that time, and at that time I was getting 20,000 from that flat, and 10% every month Nestaway is taking. Nice. Nestaway is having great good business model. Got it. I purchased the flat in 24,000 or 24 lakhs, I'm sorry, and it's right now with the registry it's 60,000 right now, 60 lakhs. Nice. So that was my first investment, and thanks to Mosa ji. Yeah. And so thanks to Mosa ji, you were aware of your investment, right? Let's talk about your current portfolio. Okay. ठीक है. And एक बार let's tell people, right, एक persona क्या है आपका, right? Okay. घर में कौन कौन है, डिपेंडेंट्स कौन है, थोड़ा एक persona बताते हैं एक बार, और अभी portfolio क्या है, and then let's add some punch to you whatever we are saying now. Okay. So I live in a nuclear family in Khatoli, and we are 5 people. My father, my mother. My father is a businessman. He's running his legacy. We have a shop in Khatoli of utensils. It's almost 100 years old. This is the 3rd generation sitting on the running the business. All kind of utensils are there. My mother used to work when I was studying in the hospital of my paternal aunt. My both uncle and aunt, Tauji and Taiji, दोनों are doctors. घर में कौन कौन है अभी? मेरे घर में मदर, फादर, मैं हूँ, मेरा बेटा है, वाइफ है. And who all are earning members now? So my father is earning member, me earning member. My wife, she's joining corporate soldier very soon. She's the backbone of our family, and she supported a lot. When I was in Amazon, I was away from her most of the time, and she supported me and my family also. And now she's joining us. Let's talk about what is corporate soldier. Okay. Where did it start? Okay, corporate soldier started. Actually, it was started when I was in my college doing my MBA. Our dean, Dr. Colonel Bala Subramaniam. Let me quote him because he is the inspiration behind this. He is the only army personnel who got promoted from the rank of Subedar to Colonel. There is no other army personnel in India who got because of his contribution into the educational sectors. He used to say every time, "You are my corporate soldiers." So corporate word is coming from corporate, and soldiers is because of his army background. So he used to say this word again and again, and it got stuck. And he used to say discipline, dedication, and determination, 3D principle, which a soldier always follow in the corporate also. So this is his legacy, and this word came from there. And when I was in Wheelside, then I think कब तक जॉब करेंगे, मतलब लिटरली. एंड आई यूज टू डिस्कस कि let's start something own,
then I just started a simple page, Corporate Soldier, on LinkedIn, and it got traction a lot. And just day before yesterday, it completed its 2 lakh followers, organic 2 lakh followers on LinkedIn. on LinkedIn. And we are basically a LinkedIn growth marketing company. We are handling the business pages of many multinational companies and startups also, and many upcoming entrepreneurs. Because LinkedIn is a gold mine of B2B leads. If you are in business, you have to be there on LinkedIn. Nowadays, everyone used to search you on a LinkedIn page before on your website. And we have currently 18 running clients with us. Good. And we are a bootstrap startup, currently having a team of 11 members, including me and Nishant. Nishant is the co-founder along with me. He's also from Khatoli. And he used to go with me to school to Muzaffarnagar in a Matador. And at that time, it took almost 1.5 hours every day to go to Muzaffarnagar from Khatoli. So traveling is in my veins. At that time and till now, we am traveling, and there is no issue in traveling. Got it. I think COVID would have been a difficult time. Corporate Soldier जो है right वो start किया as a page, ठीक है. Then you grew it into an agency, ठीक है. Okay. Was there this idea from the beginning that it has to be turned into an agency, or was it a hobby project? नहीं, मैं बताता हूँ इसमें कैसे है कि प्रीवियसली मेरा ऐसा नहीं था कि आई हैव टू लीव माई जॉब, कि जॉब छोड़ना है. बट ये था कि हाँ, पैसिव इनकम से एटलीस्ट इतना करना है कि जो तुम्हें जॉब में करंटली मिल रहा है उसका 80% होना चाहिए. मतलब ऑलमोस्ट 6 फिगर पैसिव इनकम होनी चाहिए, जिससे आप आराम से अपना जो करंट लाइफस्टाइल मेंटेन करके कर सकते हो. तो ये निशांत आया मेरे पास. ही मेट मी इन व्हील्स आई ऑफिस. ही लकली केम टू सैस टावर. तो वो आया, उसने बोला कि यार स्टार्ट करते हैं, मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ, लेट्स मोनेटाइज इट. ठीक है, करते हैं. तो so basically you had already started Corporate Soldier, then Nishant came and said कि let's monetize it. हाँ, Okay. बट मैंने इसको मोनेटाइज नहीं किया था तभी. बहुत सारे ऑफर्स आते थे कि आप ये कर लो, इस तरह से मतलब हमारा PR करो, बट वी नेवर गो ऑन इनटू इट. तो निशांत ने बोला कि इसको करते हैं, क्योंकि ही इज़ 3x फाउंडर. उसने Sodexo, ही इज़ हैविंग एक्सपीरियंस इन Sodexo. उसका शुरुआत से कॉर्पोरेट गिफ्टिंग रहा है. 15 साल से वो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में है. Got it. तो ये वर्ड भी उसको थोड़ा सा लगा, कॉर्पोरेट सोल्जर. इसके बाद उसने शुरू कर दिया फिर. So idea was to monetize it. मोनेटाइज इट. उस समय क्योंकि कोई भी स्टार्टअप ऐसा नहीं होता कि हमें मतलब हर एक की अपनी अपनी जर्नी होती है, डिफरेंट. हमारी जर्नी ये थी कि शुरुआत में मेरा ये था कि लोगों को अवेयर करो क्या चल रहा है, कॉर्पोरेट न्यूज़ क्या हो रही है, और मतलब कुछ इश्यूज़ आए तो रेस करें हम उसको, बीइंग कॉर्पोरेट सोल्जर. और मेरा ये आइडिया था, जो अभी भी है, कि एवरी टाइम जो भी मीडिया पे होता है, सब स्टोरी बताई जाती है, फाउंडर्स की स्टोरी बताई जाती है, या फिर एक स्टार्टअप की स्टोरी बताई जाती है. नोबडी नोज अबाउट ए मिडिल लेवल एम्प्लॉय और ए फ्रंट लेवल एम्प्लॉय कि उसने क्या किया. People behind the scenes are not so known. यस. तो अभी भी एंड अभी रिसेंटली हमारा एक फर्स्ट एडिशन, डिजिटल एडिशन आने वाला है, जिसमें हम ऐसे लोगों को हम फीचर करेंगे जो बिहाइंड द एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के पीछे जो है एक्चुअली मौजूद. Humans of corporates, something like that. Yes. Nice. फिर धीरे धीरे सर्विसेज ऐड होती गई, और फिर ये रियलाइज़ हुआ कि आज के टाइम में लिंक्डइन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और वो अवेयरनेस अभी नहीं है हमारे उसमें. इवन इन कॉलेजेस में किसी को नहीं बताया जाता कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनानी है, लिंक्डइन का इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच आई थिंक. अगर आप कहीं भी मतलब जॉब में आप कर रहे हो तो लिंक्डइन इज़ द अटमोस्ट नेसेसिटी. इट शुड बी ए सब्जेक्ट. Right. You talked about passive income. That you wanted at least 60-80% of your monthly income to start coming as a passive income from other places as well. How did you come to this number? So पहले तो मैं आइडिया बताता हूँ कि ये आया कहाँ से, पैसिव इनकम का. ये बहुत पुराना है. मेरे मामा जी मतलब जब मैंने जॉब शुरू करी थी HCL में, तो सर्दियों के दिन थे, जनवरी की बात है, 26 जनवरी की बात है. अब ये 2012-2011 ऐसे ही. तो बैठे थे, सब चाय पी रहे थे, तो मामा जी बोले कि यार ऐसा होना चाहिए कि हम सो के उठे हैं और तकिए के नीचे से 1000 का नोट, उस समय 1000 के नोट चलते थे, 1000 का नोट मिल जाए. खतौली में जहाँ से मैं आता हूँ, वहाँ पे किसी का लड़का आज से 10 साल पहले 20,000 भी कमाता था. तो एक
शोशा हो जाता था कि यार उसका लड़का 10,000 20,000 कमा रहा है 20,000 कमा रहा है, पता है 50 मतलब 50,000 तो बहुत बड़ी की बात है, 20,000 तो उनका ये था कि 30,000 रुपये आने चाहिए। सही बात है, रोज 1,000 रुपये मिले तो उनका ये था कि 1,000 रुपये निकले मेरे तकिए के नीचे से और फिर मैं चद्दर डाल के फिर सो जाऊँगा। ठीक है। सर्दियों में तो ये उनका मेन एक आइडिया था, तो यहाँ से आया ये वाला। तो मैंने कहा कि यार 30,000 रुपये हो तो सकता है। तो उस समय जब मेरी पहली जॉब थी तो ये सीड उन्होंने इम्प्लांट कर दिया मेरे दिमाग के अंदर कि यार ये होना चाहिए। तो अब मेरा ये नंबर कहाँ से आया, तो जैसे जैसे फिर लोन लिया मैंने देखा कि कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कितना पैसा ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें देखी मैंने कि 1 लाख आया तो उसके बाद अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन हो सकती है, लोन इतना कुछ है नहीं। तो लाख रुपए महीने में लाइफस्टाइल मेंटेन हो जाता है अगर आपके पास लोन नहीं है तो अब उसकी तो कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितना चाहिए, उसमें सेविंग भी हो जाती है। तो फिर ये लेकिन ये भी था कि उससे सेविंग भी हो रही है और फिर अपना टाइम मिल रहा है और धीरे धीरे ये आइडिया पूरा एक मैच्योर होता गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एक विशियस लूप में आजकल लोग हमारी यंग जनरेशन फंसी हुई है। जॉब आते ही गाड़ी लेनी है, घर लेना है, लोन के चक्कर में। मतलब ठीक है लोन होना चाहिए बट उसको उतारने का प्लान भी होना चाहिए। सही बात। मतलब हमारे गांव में बुलाता है कि लोन शनि है, लेकिन शनि सारे काम भी करवाता है और बिगड़वा भी देता है। तो लोन इज़ नेसेसिटी बट किस तरह से आप इसमें स्मार्टली लोगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा मैनेजर था ICICI लोम्बार्ड पे, ही यूज्ड टू से बॉम्बे में जीना है ना तो EMI लेते रहो। अच्छा ठीक है, कभी घर की कभी गाड़ी की, तुम अपने आप रास्ता ढूंढते रहोगे कि उसको चुकाना कैसे है। और एक और चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, सिंस आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो मैं हमेशा बाहर ही रहा हूँ। तो और मैंने देखा है अपनी फैमिली में, मतलब जितने भी मेरे रिश्तेदार हैं सबके बच्चे सब दूर ही हैं अपने पेरेंट्स से और मैं भी हमेशा से दूर ही रहा। तो बेसिकली आप बोल रहे हो पैसिव इनकम, आपका लाइफस्टाइल मेंटेन रहे, प्लस मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ, प्लस टाइम दे पाओ अपने पेरेंट्स को, वाइफ, अपनी हेल्थ को। बिल्कुल। तो ये आइडिया आया कि यार पैसिव इनकम होनी चाहिए, अगर प्लांट हो गया था, फिर वो तुम्हें नीड दिखने लग गई व्हेन यू आर अबाउट टू हैव अ चाइल्ड, राइट? देन व्हाट हैपेंड? तो उसके बाद फिर मैंने सेविंग्स और ये सब करनी शुरू कर दी थी। कुछ ऐसे शौक नहीं थे, याद है कि उड़ा रहे हैं, बट ऐसा भी नहीं था कि आराम से रह नहीं पा रहे। मिक्स बैलेंस अप्रोच के साथ चला था मैं। और एक जब रेंट आता था तो लगता था कि यार इसको बढ़ाना है, तो यही था कि मैं पढ़ने लगा थोड़ा। आई यूज्ड टू फॉलो वॉरेन बफे लॉट, उनकी भी सेम स्टोरी थी। इन 1941 ही इन्वेस्टेड इन हिज फर्स्ट स्टॉक और ऑन दैट वेरी डे इट गॉट टैंक्ड। और उन्होंने नेक्स्ट डे अपने फादर को बोला मेरे पास $125 है, व्हेन ही वाज 11 years old, माइट बी आई एम रॉन्ग बट यस। तो उन्होंने सारे पैसे वहीं पे लगा दिए। $30 का था उनको मिला और इट टचेस $230, बट उन्होंने पहले ही बेच दिया था। बट ये था कि जितनी जल्दी आप शुरू कर दो इन्वेस्टमेंट उतना बढ़िया है। आज भी मैं रिग्रेट करता हूँ कि मेरे को शायद और पहले करना चाहिए था, वो भी बहुत जल्दी यही रिग्रेट करते थे। तो इन्वेस्टिंग लेसन्स हमारी यंग जनरेशन्स को नहीं मिलते टाइमली, और वो मिलने बहुत ज़रूरी है। बाद में वो सोचते हैं। आज मैं देखता हूँ बहुत, मतलब आज भी लोग आते हैं कि यार जॉब चली आएगी, दे आर इन टू देयर mid-40s की यार कैसे करें क्या करें। तो यार कुछ तो सेविंग होनी चाहिए थी ना आपकी। पैसिव, अगर आपने पैसिव बिल्ड कर लिया तो ये एक मैस्लो थ्योरी में जो सबसे नीचे वाली नीड वाली है, आप इसको क्लोज कर दोगे, इससे आप ऊपर पहुंच जाओगे। क्योंकि पैसिव इनकम आ रही है, आप मतलब आपको टेंशन नहीं है, यू आर बुलेट प्रूफ कि आपकी जॉब है या नहीं। एटलीस्ट इस फियर से बाहर आना था कुछ भी करके, और फैमिली के साथ रहना था। और उसके बाद फिर मैंने फॉलो किया, मेरा जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है वो यही है कि आप एक बकेट में मत डालो पैसा सारा, आप मल्टीपल डिफरेंट पोर्टफोलियोज में आप इन्वेस्ट करो। एंड आई यूज टू एक्सप्लोर कि कौन से नए टाइप के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज आ रहे हैं। तो आई हैव पोर्टफोलियो इन एवरी, जो मेरे को पता है, चाहे वो FDs हों, उसके बाद डाकखाने में MIS स्कीम्स होती हैं, PPF पहले अप्रैल को डाल दो 1.5 लाख रुपए, क्योंकि आपको पूरा फिर उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। एंड सबसे अच्छा तो ये रहता है कि आप अपने जो नॉन अर्निंग मेंबर्स हैं उनके नाम का भी PPF खोल के आप, इफ़ यू कैन डू इट, आप उनका करो। PPF सेविंग बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा फिर शेयर्स हो गए, फिर म्यूचुअल फंड्स हो गए, एंड देन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट विच आई एम लविंग अ लॉट नाउ डेज। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ कि क्रेडिट कार्ड को आप बड़ी वाइजली आप यूज़ करना चाहिए आपको,
क्योंकि इट गिव्स यू ए पीरियड ऑफ 45 डेज प्लस रिवॉर्ड्स। मैं किसी मतलब बहुत लोगों से पूछता हूँ भाई क्रेडिट कार्ड नहीं यार मेरा सब खर्च हो जाता है पैसा, तो फिर वही एक प्रॉब्लम है उनके साथ। मेरे को तो बहुत फ़ायदा रहता है क्रेडिट कार्ड में। आई एम ट्रैवलिंग टू एनी सिटीज़, आई गॉट ए लॉन्च एक्सेस, अपग्रेड्स मिल जाते हैं, रिवॉर्ड्स पॉइंट्स और 45 डेज़ का। और नाउ विद द अपकमिंग ऑफ रुपे क्रेडिट कार्ड यू कैन डू वंडर्स। मतलब मेरे को याद नहीं है लास्ट टाइम मैंने कब पैसा निकाला अपना ATM में से। गॉट इट। तो इसमें यार योर आइडिया स्टार्टेड फ्रॉम बिल्डिंग अ पैसिव income. You had money coming from your property in Noida, and then you were doing jobs, and idea was there that then you started investing at different places, all kinds of investments you tried, right? Let's talk about what is your current portfolio like and what is the passive income today. Okay. We know that you are co-founder at Corporate Soldiers, right? But apart from, let's say, Corporate Soldier is not there, right? What is your portfolio like? What is your passive income currently? So still I am not able to touch 6 figures, but yes, it's in the almost achieve 90% of that. But is this 6 figures a monthly number or Yes. 6 figure is basically 1 lakh rupees? Yes. Right. So that's what you are targeting on a monthly basis. Yes. So where are you currently and what But is your portfolio? I achieve almost 90% of it. Okay. 90%. I'm not including the appreciation every month on my recently I purchased some land also. हमारे यहाँ गांव में से मतलब गज में जो ज़मीन होती है वो बेसिकली, तो उसका मैं अगर इंक्लूड नहीं कर रहा, और जैसे PPF हो गया, कुछ जो मंथली नहीं आ पाती उनको अगर मैं इंक्लूड नहीं भी कर रहा तो भी मतलब अगर उनको इंक्लूड कर लूँ तो आई हैव अचीव माई टारगेट। दैट्स वाई दिस पैसिव इनकम गेव मी कॉन्फिडेंस कि यस नाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन स्टार्टअप ऑल्सो। क्योंकि अगर आपके पास है ही नहीं कुछ एक इनकम जनरेटिंग। थोड़ा बताओगे आप सोर्सेज क्या हैं ये 90,000 के आज? Okay. और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि दिस 90,000 इज लिक्विड. Yes, it's like yes. you can spend it. Yes, it's yes, not yes. like you have to sell your land. No. So no. what are the different sources of this? मैं बताता हूँ कि मेजर बूस्ट मेरे को कहाँ से मिला। सबसे पहले तो ये था कि आई इन्वेस्टेड इन आई परचेज ए फ्लैट। दैट टाइम आई यूज टू पे माई EMIs ऑल्सो। तो यहाँ पे ये होता था कि मैं थोड़ा सा मैं बट फ्रूगल भी था। देर इज़ अ वेरी लिटिल डिफरेंस बिटवीन बीइंग ए फ्रूगल एंड माइजर। तो मैं फ्रूगल था सिंस द स्टार्ट बिकॉज आई सॉ द स्ट्रगल्स। लकीली ये था कि हाँ मैंने एजुकेशन लोन नहीं लिया था, तो एक शुरुआत का एक लूप था जिसमें मैं नहीं फंसा। नेवर एंडिंग लूप, विशियस सर्कल जिसे बोलते हैं, वो नहीं फंसा मैं शुरुआत से। तो कॉलेज के टाइम से ही मैं बताना चाहता हूँ, व्हेन आई वाज इन माय 4th सेमेस्टर आई गॉट प्लेस्ड ऑलरेडी। I think it was second company HCL Infosystem came to our campus. I got placed, and it was almost 9 to 11 months that were left for the final year. So I started to do a job in a call center. MIS एक है जो मंथली इनकम स्कीम होती है, तो दैट इज ऑलमोस्ट फुल इन जो डाक खाने में होती है, तो उससे 11-12 हज़ार रुपये आ जाते हैं। कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है उसमें 10-12 हज़ार आने के? देखो जब मैंने इन्वेस्ट किया था तो 8-9% था उसका, तो 12-13 लाख है उसका। तो मतलब कुछ पोर्टफोलियो मेरा है और कुछ पोर्टफोलियो मैंने, क्योंकि एक उसमें एक अमाउंट होता है डिसेंट, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, फिर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के थ्रू उसमें कर सकते हो, तो वहाँ से 11-12 हज़ार आ जाता है। इसके अलावा 32,000 केम फ्रॉम रेंट। कितना हो गया? 32 और 10 वहाँ 42 हो गया। इसके अलावा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स हैं 12% में मेरा पूरा है 10 lakhs मैंने डाला हुआ है, उससे ज़्यादा लिमिट ही नहीं है। तो उससे कितना अब 328 रुपीज़ पर डे आता है वहाँ से, तो पूरे मंथ का आप देख लो ऑलमोस्ट 10 हज़ार हो गया। 10,000 आ गया। क्रेड मिंट में देयर इज़ अ लिमिट, यू कैन क्रेड मिंट में उसके बाद आता है 50 lakhs क्लब, तो आई एम ए मेंबर ऑफ दैट। उसमें आप 10 लाख से ऊपर कर सकते हो। मेरा उसमें 14 lakhs है, मतलब आई कैन गिव यू प्रूफ, मतलब आपने लिया भी है मेरे प्रूफ। सो अराउंड लेट्स से 13,000 आर कमिंग फ्रॉम देयर, तो 65,000 हो गया। 10 हो गया 12% से, और 13,000 यहाँ से मान लिया हमने। हाँ 12 हो गया, 12 है वहाँ से, 65 ओवरऑल। ठीक है। इसके बाद ग्रिप्स हो गया आपको पता है कितना है? 18-19 हज़ार ग्रिप्स है मंथली। तो मेरे को एक ग्रिप का मेंटेन करना है अभी, तो मैं सोच रहा हूँ कुछ ग्रिप में करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट शायद जिप का हमने सबसे पहले किया था, वो शायद पूरा होने वाला है, कंप्लीट होने वाला है। तो मेरा ये था कि हाँ हर एक जगह से आना चाहिए। 85,000 के आसपास बन गया ये। हो गया ना? नहीं अभी और भी है मेरे। हाँ FDs भूल गए,
एफडीज जो हैं नॉर्मल. So basically, your passive income is mostly you have put your money to work हाँ. in most of the Yes. places, apart from the flat where that real estate is getting you the passive income. मैंने अभी उसका नहीं जोड़ा, जो शेयर मार्केट होता है उसका भी है, उसके Dividend. डिविडेंड्स आते हैं तो वो भी है. So basically, you are saying कि you actively thought about earning passive income, and you chose your portfolio that way. You are choosing your stocks that way. Is that right? यस. और ये था कि मंथली रिटर्न आने चाहिए, क्योंकि मेरे को मंथली बनाना है. मेरे को ये नहीं है कि मैं 6 महीने तक बैठा रहूँगा और फिर आएगा मेरे पास. मेरे को मंथली चाहिए. So many things in your portfolio currently are very risky as well. So is it just this passive income part is very risky, or overall portfolio is also built that way? So what I think, But so can you be let me bit specific? Yeah, let me ask you Yeah. very specifically. Is you talked about your passive income sources, and you mentioned some amounts with respect to that. Are there more things in your portfolio, or are just these things? So apart from it, I have portfolio in real estate, lands, but not too much, but yes, I have plots recently purchased. Plots are there. So nowadays what is happening कि आपकी जो property appreciation है वो दिल्ली NCR में बहुत हद तक हो चुका है. एक saturation आ गया है. Now there is a development recently happening in UP West. Rapid rail is coming every day. क्योंकि मैं जब जाता था ट्रेन से, मैं रोज़ मैं अप डाउन करता था. मैं खतौली से बैठता था. सुबह ट्रेन चलती थी 5:45 बजे, और वो मेरे को 8:30 बजे मेरा ऑफिस था न्यू राजनगर में, गाजियाबाद में, बिल्कुल उसके पास ही छोड़ देती थी. 2-2.5 घंटे लगते थे. तो मैं देखता था कि सहारनपुर से रोज लोग ट्रैवल कर रहे हैं. गाजियाबाद? यस, गाजियाबाद ही, दिल्ली. सहारनपुर से दिल्ली रोज ट्रैवल सुबह, यस, सुबह 4 बजे लोग बैठते थे ट्रेन में और वो 9-10 बजे पहुंचते थे. सो उनकी मैंने देखा है, उन लोगों के बारे में एक मूवी बननी चाहिए लिटरली. मैं ऑन सम फाइन डे कॉर्पोरेट सोल्जर पे आएगी पोस्ट, और वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं. उन लोगों के लिए वो एक, एंड दे रिटर्न द सेम डे. यस, सेम डे. और उनकी ज़िंदगी बीत गई है, बट उन्होंने एक लेगेसी बिल्ड करी है अपने परिवार के लिए, पैसा ना खर्च करके यहाँ पे रह के रोज़. और ये ट्रेन्स बहुत मैटर करती हैं उन लोगों के लिए. तो अभी एक रैपिड मेट्रो आ रही है, तो जो दौराला से दिल्ली 45 मिनट्स में ट्रैवल करेगी. तो अब उसकी वजह से लैंड रेट्स आर गोइंग टू शूट अप एट दैट प्लेस. जो आर गोइंग टू हैव ऑलरेडी बहुत हो गया. तो वहाँ अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने लगा दिया वहाँ पे, और लैंड पे रेट बहुत बढ़ते हैं. सो श्रेय, व्हाट इज इन्वेस्टिंग टू यू? सो फॉर मी it's purely an addiction. Okay. In the initial part of investing, it was like कि it is a necessity कि I have to come out of this vicious loop कि लाइफ में इंडिपेंडेंट होना है, इस नीड वाले ब्रैकेट से ऊपर जाना है. और जो पिरामिड होता है मैस्लो वाला, उसमें सबसे नीचे वाले से ऊपर जंप करना है. तो पहले नेसेसिटी थी, बट अब वो एडिक्शन बन चुका है. बट ये क्या है विशियस लूप, थोड़ा समझाओ ना. मतलब विशियस लूप इज ए काइंड ऑफ लूप जिसमें खासकर भारत के लोग फंस रहे हैं आजकल. जॉब लगती है, फिर उसके बाद वो खर्चे बढ़ जाते हैं. हमारे गांव में बोलते हैं चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए. तो वो हो रहा है आजकल कि शो ऑफ फ्लॉन्टिंग बहुत बढ़ गई है कि आपकी इनकम इतनी है, आप खर्चा इतना कर रहे हो. जॉब लग गई, खुद को ना दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए प्रॉपर्टी ले रहे हो, गाड़ी बड़ी ले रहे हो, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप ले रहे हो. तो वो आप उसमें फंस जाते हो, और आप फिर आपको वो, क्योंकि आप जो कर रहे हो लाइफ में, आप उसी तरह, वही आपका माइंड सेट होगा. आप देख रहे हो ठीक है यार, मेरी जो सैलरी से वो सब कंपनसेट हो रहा है, बट आपको नहीं पता कि आपका एडिशन क्या हो रहा है, आप क्या छोड़ के जाओगे, या यू आर लिविंग ओनली फॉर यू और यू आर फॉर अपकमिंग जनरेशन. कि वो आपको याद करेंगे नहीं, क्योंकि आज के टाइम मतलब जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं बाप दादा छोड़ के गए हैं, क्या आपकी जनरेशन आपको याद करेगी आगे? ऐसा. गॉट इट. और इन्वेस्टमेंट एज अ सब्जेक्ट, ओके, अभी आई थिंक यू आर वेरी वेरी मच अवेयर, राइट? बट कमिंग फ्रॉम अ tier 4 सिटी, खतौली, राइट, when did you think or where did you think was the gap in that? At least as far as I know, we don't usually talk about investments at house. yes in India उनके लिए यही रहता है कि थोड़ा सा आपने
प्रॉपर्टी कर ली, बट इन्वेस्टमेंट नो बडी टॉक्स अबाउट। इन्वेस्टमेंट इज जस्ट लाइक FD। इन FD हो गया, LIC हो गया, दैट्स इट, इन्वेस्टमेंट ओवर। गाड़ी है, जॉब है, बस दैट्स इट। सो उसका क्या आपके अपकमिंग जनरेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके आने वाली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा, जो बिकॉज लाइफ नेवर रिमेन सेम। आपको आगे डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस आएंगे ही, और कोविड में लोगों ने समझा भी। जिसने अच्छा सेव किया हुआ था या जो कुछ भी बनाया हुआ था, उसको वो वहाँ पे क्वेश्चन मिला, बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कि इन्वेस्टमेंट क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। क्योंकि आप खाली अपने लिए नहीं जीना, आपको आने वाले अपने बच्चों के लिए भी जीना है, सबके लिए। फैमिली में देर आर नॉट कि आपके ही जो डिपेंडेंट्स हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, यू कैन हेल्प देम ऑल्सो। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पहले इंडियन हाउस होल्ड्स में होता था कि गुल्लक से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की स्टार्ट होता था। मेरी भी वैसी हुई थी कि गुल्लक दे दी जाती थी बर्थडे पे। अब लेकिन ऐसा नहीं है, अब तो मोबाइल चल रहा है और अब हाथ में क्रेडिट कार्ड आ जाता है। और आजकल तो देर आर सम प्रोडक्ट्स जिसमें स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं। तो स्पेंडिंग की अभी आई वॉज रिसेंटली कमिंग अक्रॉस ए रिपोर्ट जहाँ पे आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स की इन इंडिया इज नाउ एट द हाइएस्ट राइट नाउ। इट्स ए रिपोर्ट विच केम 3-4 days बैक। तो इट्स ए गुड साइन ऑल्सो, इट्स ए बैड साइन ऑल्सो। हालांकि NPAs आर वेरी लो उसमें अभी, बट राइट नाउ दैट ग्राफ इज शूटिंग अप। In America it's also like that. You are living on plastic money. In India is also similar. Shreya, you have worked at startups, different corporates as well, and you must have got some ESOPs or RSUs. Do you want to talk about that? Are those valuable? Is there an impact of that? When I joined Amazon, then I saw the joining letter. It mentioned 60 RSUs. What is RSU? Let's explain. RSU means restricted stock units. It's almost same as ESOPs. They gave me Morgan Stanley account. It was purely new to me. I hardly then I used to see the stock of Amazon every day. When I joined, it was $400. मैं देखता था रोज, और उसमें फिर मैंने पढ़ने लगा कि क्या कैसे, मतलब तो ये था कि 4 साल के पीरियड में आपको 15 करके आपके वेस्ट होंगे, देन यू कैन सेल ऑल्सो। देन मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली गई एंड प्राइसेस वाज शूटिंग एवरी मंथ। इट वाज गेटिंग ट्रैक्शन क्योंकि अमेजोन वाज ऑन रोल, स्टिल इन ऑन रोल। तो अब तो बहुत कम हो गया, तो $400 का वो $2100 हो गया 4 साल में। So you still have those? एक दो पड़े हैं just to have that Morgan Stanley feel with me. Got it. I can easily say that joining Wheelsai is one of the best move of my career. Not an issue, and it was really nice experience. When did you start investing in startups? Was it also around the time Wheelsai? No. It started when I about to join Wheelsai, and I got ample amount of shares of Amazon at the highest peak. So I got ample amount of money. then I invested in there is a startup which is into basically soul elevation. So it's a purely spiritual, because I was also moving into that zone for quite good amount of time, and I invested into it. It was my first investment. I got 2.5% of equity there. I invested 5 lakh rupees. How is it doing today? So it is doing good, and they never offered exit, but I don't have any regret, but it's doing good. I want to understand why would you start investing in startups? It's the highest risk category, yes, right? Yes. Why would you start doing it? And it does not even fit into the philosophy of passive income, because it does not give you any monthly return. Nice question. तो जब अमेज़न मैंने छोड़ा उसके बाद मतलब आई वॉज इन ए कन्फ्यूज स्टेट कि क्या करें, बिजनेस ज्वाइन करूं, क्योंकि एक थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ गई थी उस समय। तो आई टुक ए ब्रेक ऑफ हार्डली 1-2 मंथ मैंने ब्रेक लिया। कुछ कंसल्टेंसी असाइनमेंट्स भी किए मैंने। दैट टाइम आई वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या करना है, तो थोड़ा सा मैं स्पिरिचुअलिटी में मूव हो गया। और फर्स्ट जो मैंने किया इन्वेस्टमेंट किया वो मतलब इट वाज नॉट प्योरली फॉर मॉनिटरी पर्पस, दे नीड द फंड्स। एंड so you were into spirituality, you came across one company and that needed funds, and I did their course also. Achha. So it's a course of self actualization.
क्या कोर्स था ये वैसे, थोड़ा पर्सनल? हाँ मैं बताता हूँ, ये मैस्लो थ्योरी पर ही बेस्ड आउट है। तो उसमें यही है कि उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टॉप पे होता है। टॉप पे है, मेरे को याद है वो पढ़ाई करी थी कॉलेज में, ठीक है। हाँ, फिर तो यही था कि आप मतलब एक बेसिकली ये है कि आपको मतलब इसको रियल में इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अच्छा। थ्रू मेडिटेशन एंड थ्रू योर लाइफस्टाइल, हाउ यू कैन कम आउट ऑफ दिस विशियस सर्कल। कि मतलब आपका पर्पस इंडिया में मतलब वर्ल्ड पे आने में ये नहीं है कि आप खाली कमाना है, ये सब करना है। द मेन पर्पस ऑफ यू टू गेट बर्थ ऑन दिस प्लेनेट इज टू ह्यूमैनिटी सर्विस। और आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को कैसे अचीव कर सकते हो, दे ऑल्सो डू सम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स आउट ऑफ इट। सो काफ़ी डीप है ये, मतलब मैं आई कैनॉट एक्सप्लेन। So then that was the start of your startup investment journey. Yes. And then what was the second opportunity? How did that happen? So second opportunity was Grip. Okay. So Grip में I was discussing with विवेक कि मतलब यही मैं सारा डिस्कस कर रहा था, पैसिव इनकम ये वो, क्योंकि प्रेशर है, नंबर नहीं हो रहे थे, नंबर धीरे धीरे हमारा प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा था। तो मैं फिर डिस्कस भी करने लगा उनसे। तो आई वॉज नॉट नोइंग कि ये भी वो भी ये बिल्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि फिर ऐसा हम कर रहे हैं, तू देख। मैं कहा सही है। तो यास तो मैंने कर दिया। तो क्योंकि मेरा एक ये प्रिंसिपल भी है कि मतलब आई नेवर गो इनटू फाइनेंशियल, लेट मी टेल यू, आई बैट ऑन द जॉकी नॉट ऑन द हॉर्स। हर एक का अपना अलग अलग होता है फंडा। मेरा फंडा यही है कि चलाने वाला कौन है। मैं बंदे के पोटेंशियल पे देखता हूँ कि कौन चला रहा है स्टार्टअप। मैं बंदे पे लगाता हूँ पैसे। मैं स्टार्टअप में, अब मैं फाइनेंशियल बैकग्राउंड से तो हूँ नहीं कि मैं पी और ये सारे रेशियोज और ये मैं देखता रहूँ या किसी से इवेल्यूएट करवाऊँ। लिटरली एक गट फीलिंग होती है, इम्पल्सिव होती है। और मतलब इट गॉट क्लिक्ड। ग्रिप वाज मतलब एज ऑफ नाउ माई वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो इन स्टार्टअप्स। तो अच्छा है। तो आई गॉट मल्टीपल टाइम्स आई गॉट ऑफर टू गेट एग्जिट, बट आई डोंट वांट टू गेट एग्जिट बिकॉज आई वांट टू बी अ पार्ट। Yeah. So I'm a part in Grip as a angel investor as well as retail investor. And whatever happens in future. Yes. Got it. So how has been your experience with the platform investments that you do as a retail investor? वो जर्नी कैसी रही? तो सबसे पहले तो ग्रिप से स्टार्ट हुआ। It's good to know that even after you becoming an angel investor, you invest on the platform because you really believe in the platform. Yes. It's not because that अच्छा मैं एंजल बन गया तो मैं करता रहता हूँ। शुरुआत में तो पूछता था मैं आपसे करूँ, फिर तो मैं खुद ही कर देता था। तो मज़ा आया मेरे को। Got it. There is one more interesting thing I wanted to talk to you about, right? Whenever I chatted with you, right, in past, you came across as a person who has tried a lot of investment options. ठीक है? I think we all know about stock, mutual fund, gold, and Grip investment options, P2P. What are other investment options you have tried and tested? So 12% I'm P2P में आ गया, 12% आ गया, क्रेड मिंट आ गया। Okay. What else is outside of this? क्रिप्टो भी किया। क्रिप्टो का क्या जर्नी था? So it was a मतलब failure for me। मतलब एक तो हमने उसमें किया कॉइन देखो कौन सी एक ऐप आई थी। There were so many apps with the name तो coin, उसमें but किया तो उसमें ट्रेडिंग होती थी। जब ये डॉज कॉइन आया था वो ट्रेडिंग टाइप था, वो किया, उसमें कुछ फ़ायदा भी हुआ। जस्ट आई वॉज ट्राइंग इट आउट ऑफ माई क्यूरियोसिटी। तो मैंने उसमें किया मल्टीपल कॉइन्स में मैंने पोर्टफोलियो बिल्ड किया, वो सही रहा। लेकिन फिर एक जैसे नेटवर्क मार्केटिंग होता है ना, उसमें कुछ लोग आए जो मेरे से रिलेटेड हैं, दे आर क्लोज टू मी। उन्होंने बोला ये इसमें कर लो, इसमें हर मंथ आता है। तो वो वहाँ पे मेरे 40-50 हज़ार रुपये डूब गए। तो MLM, हाँ MLM टाइम, वो क्रिप्टो का ही था। अच्छा क्रिप्टो में MLM बना दिया किसी हाँ। ने? ओके। और क्या ऑप्शन ट्राई करे? स्नीकर ये मैंने एडवांटेज मैंने आपको बताया था कि इट इज़ वेरी मतलब फर्स्ट टाइम आई केम अक्रॉस। मेरा जो को फाउंडर है मेरे साथ जो निशांत है, तो ही यूज्ड टू से कि जॉर्डन के जूते आप लो, ये सब करो। मैंने यार ये ऐसे कैसे होता है? तो उसने बताया कि कोई भी शू जब लॉन्च होता है तो लिमिटेड एडिशन लॉन्च होता है, यू परचेज इट, इफ़ यू आर लकी तो आपको मिल जाएगा और फिर आप बेच सकते हो उसको उसके इवन 100x प्राइस पे।
तो Okay. I was So your co-founder, he's the co-founder of Corporate Soldier, निशांत अरोड़ा. so he invests in हाँ sneakers? वो कर रहा था. तो मेरा शौक था कॉइन कलेक्शन का, तो I am having almost 500-600 यूनिक कॉइन्स which I am having. तो मैंने एक बार डाला उनको पोर्टल पे OLX पे डाला, तो इट इज़ गिविंग गुड रिटर्न, बट मैंने नहीं दिया किसी को भी. वैल्यूएशन करवा ली. हाँ वैल्यूएशन मैंने कराई मैंने बट नहीं दिया, क्योंकि ये मतलब निशानी है जो मेरे दादा परदादा जो थे उनके साथ टाइम से वो इकट्ठा हो रहा है, उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है, तो वाई शुड आई सेल इट. और मतलब ये एक कॉमन सेइंग है कि दादा लाई प्रॉपर्टी को मत बेचो, मतलब फिर वो आता है आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी आता है और अपशगुन होता है. मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं कि प्रॉपर्टी को बढ़ाओ आप, Got it. और ये भी बोलते हैं कि एक पीढ़ी आती है कि वो बढ़ाती है, फिर एक पीढ़ी आती है, तो आई डोंट वांट टू बी दैट पीढ़ी की जिसने बेचा है. मैं चाहता हूँ बढ़ाऊँ. No, fair enough. We ask this question to everyone. What is your go beyond mantra? So, go beyond is our tagline of Grip. Go Okay. beyond volatility, go beyond low returns, Okay. okay, and go beyond inflation. Okay. So, what is your go beyond mantra for your investments or your portfolio? So for me it's a journey, and I hope this journey keep everlasting till I am here, and after that it will give returns to my forthcoming generations, and even not only to my generation, and it will help to my I'm attached to my home place a lot. मतलब तो मैं चाहता हूँ कि खतौली का भी कुछ अच्छा हो इससे. Good. We have a group in Facebook जिसमें almost there are 35,000 Khatholi people are there. Okay. So we are very closely related with each other. From every community, Hindu, Muslim, Sikh, everyone is there on that community. कुछ भी issue आता है तो they raised, और किसी को ads डालने होते हैं तो Corporate Soldier है ही वहाँ पे. तो अभी एक recently startup है whom we are supporting, अपनी बेकरी करके है. अब उसने स्टार्ट किया है और उसने स्टार्ट किया है क्रेड कैश से लोन लेके. अच्छा, क्रेडिट कैश से लोन लेके अपनी बेकरी डाली है. हाँ अपनी बेकरी नाम है. हाँ, अपनी बेकरी डाली हाँ. है वही. तो अभी 1 मंथ पूरा हुआ है उसका, एंड देर आर ऑलमोस्ट 6-7 स्टोर्स जो उसके साथ एसोसिएट हो गए, एंड ही इज गेटिंग गुड ट्रैक्शन आउट ऑफ इट, गुड ऑर्डर्स, गुड ट्रैक्शन. तो बाय दिस दिवाली ही माइट बी एबल टू रीपे दैट क्रेडिट कैश, बट ही विल से थैंक यू पर्सनली, थैंक यू मिस्टर कुणाल शाह. क्योंकि मतलब आप देखो कि किस तरह से, और उसने हमेशा अपनी अच्छी एक क्रेडिट प्रोफाइल मेंटेन करी कि क्रेडिट कार्ड्स हैं उसके पास 11-12, उसने कंटिन्यूसली पेमेंट उसने दिया उनका वापस. So we have this last round, we call it rapid fire round, and we have some questions for you. Okay. So answer whatever comes to your mind rapidly. So best stock trading app. Grow. Why? Because why? I used ICICI Direct also. It is very complicated. There is a leadership principle in Amazon: simplify and invent and simplify basically. So if you want to scale something, so it should be very easy to use. So I find Grow very easy. Got it. Investing via financial advisors or DIY, do it yourself. Do it yourself as of now. Short term or long term investments. Long term. High risk, high return, or low risk, low return. So it's a mix basically. If I want to choose one, so it was low risk, low return. Basically, you want to build a passive income portfolio, so you would want low risk, low return, and consistent returns. Because at this point of time, if I am keep adding into low risk, low return, that will keep adding up, और मेरे को वो एक सर्कल बड़ा हो गया उसका. तो मैं क्यों रिस्क लूँ फालतू में, जब मेरे को एक प्रॉपर आ रहा है उससे, तो मैं उसी में डालता रहूँगा. मतलब ये रहता है कि यार कुछ मतलब जल्दी हाथ मार लेते हैं, तो व्हाट इज़ द नीड, क्यों आप रिस्क ले रहे हो. हर आपकी मतलब बेसिकली पोर्टफोलियो बकेट में होना चाहिए सब कुछ ना कुछ. और अगर आप लो रिस्क ही आप इतना बना रहे हो कि उससे ही अच्छा आ रहा है, तो फिर क्यों. सही बात. फेवरेट फाइनेंस इन्फ्लुएंसर. मिस्टर वॉरेन बफेट. हम तो थोड़े से ऑर्थोडॉक्स ही हैं आदमी. FDs और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स. इफ आई हैव टू चूज वन FD, क्योंकि जब FDs का पूरा भर जाएगा देन आई विल कम इनटू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. बिल्कुल, रियली अप्रिशिएट दैट अप्रोच, बट आई थिंक बैलेंस बना के करते रहो, नॉट लाइक फिल वन बकेट फुल एंड देन गो टू वन.
फिजिकल रियल एस्टेट और गोल्ड? फिजिकल रियल एस्टेट, गोल्ड बहुत है घर में। गोल्ड में पहनता भी नहीं हूँ, कोई फायदा ही नहीं है मतलब। बट गोल्ड, हाँ, माय फादर यूज्ड टू से, स्टिल ही यूज्ड टू से कि भाई गोल्ड ले लो, लड़ाई हो रही है कहीं, गोल्ड ले लो, गोल्ड ले लो, गोल्ड के बढ़ने वाले हैं। एंड गोल्ड इज मतलब, व्हेन आई बीन टू दुबई तो वहाँ से भी मैं लाया था गोल्ड। तो पापा ने बहुत गोल्ड वाला इन्वेस्टमेंट करवा दिया क्योंकि ही इज इनटू मेटल इंडस्ट्री। और मैं तो बस जब गिफ्ट देना होता है वाइफ को तब लेता हूँ गोल्ड। समझ गया। मतलब बेस्ट गिफ्ट टू योर वाइफ शुड बी गोल्ड। वो हैप्पी भी है, आपका इन्वेस्टमेंट भी हो गया और वो बढ़ भी रहा है। तो मतलब ये बोलते हैं हमारे यहाँ कि भाई, मतलब थोड़ी देसी लैंग्वेज है यूज़, लुगाई को खुश रखना हो तो गोल्ड दे दो, सोना दे दो। एक्टिव इन्वेस्टिंग और पैसिव इन्वेस्टिंग? एक्टिवली स्पेंडिंग टाइम ऑन इन्वेस्टिंग और पैसिवली स्पेंडिंग टाइम ऑन इन्वेस्टिंग? एक्टिवली मतलब मंथ में एक दिन तो ज़रूर दो, मतलब वो एक अंदर से सेटिस्फेक्शन आना चाहिए यार, चलो आज का इन्वेस्ट हो गया। और वो हर बकेट के लिए अलग अलग है। जिस दिन मार्केट गिरे उस दिन स्टॉक उठा लो, चाहे 5,000 का ही उठाओ। कोई अच्छा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पे अच्छा वो आया है, एफडी के रेट बढ़े, एफडी कर दो। बाइंग अ हाउस और रेंटिंग अ हाउस? आफ्टर बाइंग, रेंट इट आउट। never stay in rented house. I'm allergic to stay in a rented house. खुद का होना चाहिए ना, बाइंग अ हाउस, राइट? बाय वर्सेस रेंट में यू आर चूजिंग बाय। तो वो मतलब एक गाना याद आ रहा है मेरे को इंग्लिश का, आई हैव अ गर्लफ्रेंड इन द ये रो, तो ऐसा होना चाहिए, आई हैव अ हाउस इन एवरी सिटी। इंडियन स्टॉक्स और यूएस स्टॉक्स? इंडियन स्टॉक्स। Got it. So that's it from our side, Shrey. Thank you for your time today, and thanks for taking the effort to come from Khatoli to here in Gurgaon. Almost a 2-hour ride. So it's a 1.5 hour ride. 1 hour ride. So this is a question we ask everyone here. So if everything is taken away from you, how will you start? So very nice question. And अगर सब कुछ चला जाता है, but everything can be snatched away, but you cannot snatch away my learnings. I can rebuild again. So everyone should be prepare for the worst every time. अगर आप हमेशा ही एक उसमें है, अच्छे ट्रेजेक्टरी में हो, तो आपने कभी नेगेटिव देखा ही नहीं है, तो यू कैन नॉट फेस सिचुएशन व्हाट हैपेंड इन कोविड। लकली आई शुड नॉट से लकली, अनलकली वी फेस्ड इट, एंड वी शुड लर्न फ्रॉम इट एंड गिव लर्निंग्स टू योर, गिव द नॉलेज ट्रांसफर टू योर अपकमिंग जनरेशन कि किस तरह से ऐसी सिचुएशन के साथ हमें डील करना चाहिए। सो लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यस। Yep, thank you very much. Thank you. And to our listeners who have stayed till the end, thank you for tuning in. Hope you enjoyed the session today and found the journey of Shrey very interesting. Please do share your questions in the comment box and we'll be happy to answer all of them. So till then, thank you very much. Do like, share, subscribe so that you can get the next episode of The Inquisitive Investor right in your YouTube app. So till then, go beyond and get a grip on your money.